Right. So I'm Srishti. I'm professor in critical care at Mahatma Gandhi Hospital, and I'll be the master of the ceremonies. And the main role will be played by my team members, Dr. Priyanshi Gupta and Dr. Sulekha. So without further ado, let me invite Dr. Priyanshi Gupta. Priyanshi will be taking you through the basic steps of CPR. Right. So we will first learn कि CPR होता क्या है, क्यों देना है, कैसे करना है, और उसके बाद डॉक्टर सुलेखा विल अगेन डेमोन्स्ट्रेट टू यू ऑल. एंड प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे आएंगे जो स्टेज पर परफॉर्म करके दिखाएंगे CPR. ऑलराइट? ओके. And a very warm wishes from Red Cross Society on this Red Cross Day. Okay, so let's begin. हम पढ़ने वाले हैं BLS. Is that more clear now? Okay, so BLS मतलब Basic Life Support. Basic Life Support. Something that you need for your existence in terms of an unfortunate event. So why do we have to learn? Why do you students have to learn? You already have a lot to learn. ये जानना क्यों जरूरी है? Because you might have to give this and you might be a rescuer at any point of your life. मान लीजिए you going to a market with your mother and you see some unconscious person on the floor. What will you do? And at that point of time, like Mr. Sada said, you can be the God. आप उसकी जान बचा सकते हैं सिर्फ छोटी छोटी चीजें करके, जो आज हम सीखने वाले. That is why basic life support CPR has to be learned by everyone, so that no matter what you can save somebody's life at home, at a public place or anywhere where you're traveling. ठीक है? So जैसे मैंने बोला, अब हम एक पिक्चर देखेंगे. I'm going to play a video for you all, but I want you to see that video very carefully. हर एक चीज जो उस वीडियो में होगी will be asked, so I request you all to watch this movie. In 3, 2, 1. Hey, are you okay? Are you okay? Help! Someone help! Activate the emergency response and get an AED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Did you notice a lot of things? अब हर एक स्टेप को हम decode करेंगे. We are going to do a debriefing of what we saw. तो ये होता क्या है basic life support? For you to exist, we have two main organs. Heart, which is pumping the blood. As most of you are in 10th, 11th and 12th, I think by now we know this much of biology. A heart which pumps the blood to give oxygen to all the other vital organs, and a lung which oxygenates that blood so that all the life comes to be. What happens when you become unconscious? The heart stops pumping. So there is no blood going anywhere
and similarly you stop breathing. So there is no oxygen coming into the blood. तो आपने जो काम करना है, आपने दो लोगों का काम करना है. You have to take over the work of a heart and of the lung. What work are you doing by taking over the heart? You are giving compression. And what work are you taking over of the lung? You are giving breathing. इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन. कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग, रेसिसिटेशन मतलब रेस्क्यू, रिवाइवल. What is not working will have to be taken over by you to get started to work. Okay. Now we have a checklist. हमने मूवी देखी, हमने मूवी में देखा जो रेस्क्यूअर था उसने सबसे पहले क्या किया? The first thing he did was he checked for scene safety. He looked here, he looked there, he saw that everything is safe. I can start the CPR. For example, you find an unconscious person in the middle of the road. Will you start CPR in the middle of the road? No. कोई गाड़ी आपके ऊपर से चली जानी है. So what will you do? You will first give yourself enough safety, the patient enough safety. You will move that patient to a safe zone, give scene safety, and then start CPR. What was the next thing he did? He called for help. He said, go call an emergency. अगर आपको ऐसा कोई unconscious person market में मिल जाता है, what will you do? You will ask your surrounding to immediately call an ambulance or call a hospital. And what will you do second? You can even dial 112 and immediately you will get a help. Second thing that is written over there is an automatic external defibrillator. हमने बहुत सारी पिक्चरें देखी है जिसमें हमने देखा है मॉनिटर पे वो एक फ्लैट लाइन आ जाती है and then doctor says अब ये नहीं रहे. So what is that? The heart has stopped working. Now heart, like you all know, has pumping and that is generated by electrical activity. So this gives shock. It starts the heart, it gives an electrical activity, so the heart starts pumping again. Third thing was he assessed for the pulse and the breathing. उसने देखा carotid. हम सब आपको बताएंगे how do you assess for carotid, how do you assess for breathing. ठीक है? Then what he did? He started the CPR. He started giving compressions. कितना तक काउंट किया था उसने? 30. और उसके बाद कितनी बार सांसें दी थी उसने? 2 times. So what is our cycle? 30:2. And how many cycles did you see? 3. So 30:2 for 3 times. Initially we do it for 5 times. So 5 cycles of 30:2 and then we reassess the pulse and the breathing. ठीक है? So this is the checklist. Now there are 2 types of rescue mechanisms we can see. What is IFCA? In hospital cardiac arrest and OFCA is out of hospital cardiac arrest. For you all to know, we are going to focus on out of hospital cardiac arrest. So can you see the chain of survival which is lower down? Adult OFCA chain of survival. क्या पीछे वालों को दिख रही है? Okay, तो मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ. The first one is activation of emergency response. When you are God, you have to do a teamwork. Don't think आप अकेले सब कुछ कर सकते हो. The moment you see an unconscious person, you start CPR but call for help. Immediately activate an emergency response. Because आप लोग क्या कर रहे हो? Basic support. Advanced support कहाँ से आएगा? Hospital से. तो सबसे पहले activate the emergency response, call for help, call for ambulance, call for AED. The second that you do is high quality CPR. CPR क्या था? Pulmonary resuscitation. तो उसमें क्या करना है हमने? Compression and breathing. The third thing that you do is the defibrillation. You have to give the shock to the patient for the heart to come back to life. The fourth thing we do is we wait for the advanced resuscitation people to come and take over our job. The fifth is post-cardiac adult care, which is in the hospital, and the last is recovery. हमने CPR की बात कर ली क्या था? How do we do it and why do we do it? Now CPR is done in 3 steps. CAB. You can remember it as CAB. Compression, airway, and
पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, there is still some amount of oxygenated blood in the system. But what is not working? The heart. He is not able to send that oxygenated blood to the brain, to the kidney, to other organs. So the first thing we start is compression. Then what do? We secure an airway. कैसे करेंगे? अभी अपन बात करेंगे. How do we secure an airway? The third thing that we do is we give breathing. See, we all know when we inspire, what is the amount of oxygen which is there in the air? Very nice, 21%. And when we exhale, what is the amount of oxygen in the exhaled air? 17%. But you are almost there. So 17% of oxygen is there in your breath when you are taking that out. तो आप 17% ऑक्सीजन सिर्फ माउथ टू माउथ ब्रीदिंग से दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पॉकेट मास्क नहीं है, आपके पास ये सब नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उसका चिन लिफ्ट करिए, उसका मुंह खोलिए, क्रिएट अ सील ऑफ योर माउथ ऑन दैट पेशेंट्स माउथ एंड गिव एन एक्सपायर्ड एयर। वी ऑल कैन डू दैट। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस डूइंग दिस राइट नाउ। ओके, अब कंप्रेशन देना कैसे है वो सब सुलेखा मैम आपको डिटेल में समझाएगी। हाउ डू वी गिव अ कंप्रेशन? वी फोल्ड आवर हैंड्स, कीप देम स्ट्रेट, एल्बो को बेंड नहीं करना है। ऐसे ऐसे सीपीआर नहीं होता। कीप योर हैंड स्ट्रेट, बेंड योर शोल्डर। एंड हाउ मेनी कंप्रेशन विल यू गिव? कितने तक काउंट किया था उसने? 30। सो 100 to 120 कंप्रेशन इन 1 मिनट। अभी जब करके देखोगे तो पता चलेगा इट्स नॉट इजी। अपना हार्ट बहुत मेहनत करता है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर हार्ट। सो 100 compressions in 1 minute. When you give it on a management right now, you will realize it's a lot of hard work. You will get tired in just 10 compressions. ठीक है? कहाँ पे देते हैं? ये अपना क्या है? We all know what is this bone? Sternum, right? Breast bone. So sternum का नीचे वाला हिस्सा होता है और आपकी निप्पल की लाइन। At that midpoint, you put both your hands, cuff them tightly, put your elbows straight and start compression. ठीक है? अभी आपको demonstrate करके हम बताएंगे. That is how you give compression. कितना depth में जाना है? 5 to 6 centimeter. And once you're through 30 compressions, what will you do? Airway and breathing. Very good. लड़के बहुत एक्टिव है। लड़कियां क्यों इतनी चुप है? तो ये अपनी ब्रेस्ट बोन है। Can you see that? And you can see the doctor's sign made on his hand. That is where you give compression. ठीक है? Look at his hand. Look at the fulcrum made. The elbows are straight. The compressions are coming from the shoulder. बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। Keep counting. उस मूवी में उसने कैसे काउंट किया था? 1, 2, 3, 4. It wasn't 1, 2, 3, 4, 5, 6. Don't do it too fast, otherwise the compression will be inadequate. आपके टीचर्स ने आपको सिखाया है, हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया है, जो काम करो अच्छे से करो, चाहे धीरे करो, ठीक है? So count properly, give proper compression, ठीक है? This is how you secure the airway. Lift the chin and tilt the head, ठीक है? Now you give a mouth-to-mouth breathing like this. If you have a pocket mask, you can use a pocket mask. But if you don't have a pocket mask, you can do a mouth-to-mouth breathing. So this is a pocket mask. If it is available in the nearby vicinity, for example at our airports, वहाँ पे सब पे ये available होते हैं, ठीक है? CPR devices are available at every public place. चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो आपका स्कूल हो। स्कूल इज अ पब्लिक प्लेस। आपके स्कूल में भी एक सीपीआर डिवाइस अवेलेबल है, ठीक है? Then this is the advanced care. This is what when advanced help arises, they will do. अब आप वापस एक मूवी देखेंगे। हमने क्या देखा था? आप अपनी मम्मी के साथ मार्केट में जा रहे थे। Suddenly you saw somebody was unconscious. You started doing a CPR. Now we will see you and your friend are going to a market. So how effective and how better is that CPR? ठीक है? Hey, are you okay? Are you okay? Activate the emergency response and get an AED.
There's no breathing, no pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. The primary first rescuer just gave compression and he was helped by his friend who was giving breathing. अगर आपके पास ambu mask नहीं है, that is not a problem. You can give a mouth-to-mouth breathing. So what is true rescuer doing? It is saving time. If you are the only one, first you will give 30 compressions, then you will change your position, then you will do a chin up, head up, secure the airway, give breathing, get up, go back, give compression. It's wasting precious time. So two rescuers are always better than a single rescuer. Now this is an automatic external defibrillator that you see in the movies. जो शॉक देता है जिससे वो स्ट्रेट लाइन वापस से कर्वी हो जाती है ना? So what it does, it has two pads. Can you see the two pads there? Can you see these two pads? One you place over the shoulder right here, ma'am will tell you exactly where, and the other over the other side of the nipple. Then, so automatic है मतलब it will tell you what to do. You don't have to worry about using this device. The device will give prompts. Like once you switch on the device will say put on the pads. Then once the pads are properly secured, the device will tell you that it is assessing the cardiac rhythm. Once the device assesses the rhythm, the device will let you know कि इस person को shock देना जरूरी है या जरूरी नहीं है. Once the device says no, give shock, you will all clear off the device, press the button, and the shock will be delivered. And the moment the shock is delivered, the machine will let you know that the shock has been delivered. And you immediately start compressions again without wasting time. So I think this we'll do it as a workshop and we'll see. So I'll skip this movie, we'll watch it probably at the end. And this is the entire logarithm जो हमने अभी तक पढ़ा. सबसे पहले हमने क्या इंश्योर किया था? Can you all speak with me? Scene safety. Very good. Second चीज हमने क्या की थी? Call for help and arrange for AED. तीसरा क्या किया था हमने? Emergency response activate किया था. Ambulance बुलाई थी. चौथा क्या किया था हमने? Yes. हमने पल्स और ब्रीदिंग चेक की थी. कभी कभी आप चक्कर खा के भी गिर सकते हो, तो शुरू नहीं हो जाना. देखो कि उसकी ब्रीदिंग और पल्स दोनों नहीं है. It has to be a cardiac arrest. Sometimes you stand in sun for a lot of time. Boys play cricket, girls play badminton. They're playing in the heat and there's heat exhaustion and you fall down. Will you do a CPR? No. What will you do? You will give hydration. पानी पिलाओ उसको, है ना? और बोलो कम खेले. So don't just start CPR the moment you see somebody falling on the ground. चलो शुरू हो जाती है तो मर गया. नहीं, देखो पहले पल्स है, BP है, नहीं है, फिर करो. तो अब अपने पास है 3 सिनेरियो. There is no pulse, there is no breathing. What do we do? CPR. There is pulse, there is breathing. What do we do? Wait. There is no pulse. There is pulse, but there is no breathing. What do? We only give rescue breath. Abhi we'll talk about all of this. Then what did we do? हमने CPR दिया. 30 is to how many cycles? 5. 5 cycles of 30 is to 2. फिर हमने क्या किया? वापस से असेस किया कि क्या आपकी मेहनत रंग लाई.
Did the compressions and the breathing actually revive the patient? If yes, you stop. If no, continue till you get a help. Help कैसे आएगी? You will get advanced medical personnel who will come and take over your job and you will get an AED. ठीक है? Once you get an AED, if you are equipped, like you all will be now, so you will give a shock and wait for the person to come. अगर आप एयरपोर्ट पे होंगे, आपको AED अवेलेबल है. You just have to stick the pad, then give a shock and the patient might revive. ठीक है? If not, again start the CPR. Never waste time with the CPR. आपने 30 compressions दिए, फिर आपने सोचा 2 मिनट सांस मैं ले लेता हूँ, नहीं तो मेरी चली जाएगी. I'll start again. No. Every time you stop a compression, the amount of blood reaching the brain will reduce by 80%. Then you will have to restart and get it to the normal. So call for help. You are tired, let somebody take over. He is tired, you take over, right? So this is return of spontaneous circulation. This is our happy moment. Movie की happy ending. Patient का circulation वापस आ गया. We are all happy. Then you put the patient in the recovery position. कैसे किया है? उसका हाथ उसके सर के नीचे रखो, उसको एक तरफ tilt कर दो, elbow और पैर बाहर निकाल दो. This means he will not roll over and the airway is open. So all the videos that you saw are from AHA. All the guidelines that we follow for BLS and ETLS are from AHA, right? So AHA has recommended 2020. These are the updated guidelines that have all been taught to you right now. So the CPR specialist and the subject expert, Dr. Sulekha ma'am and Dr. Shrishti ma'am are here with us. We are going to show you on the mannequin how is it done. आपको theory आ गई? Theory आ गई? अब practical देखो, ठीक है? Thank you. That's all from my side. So good morning everyone. Myself Dr. Sulekha Saxena, Senior Resident in Critical Care Medicine, Department of Critical Care Medicine, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज. So अभी डॉक्टर प्रांशी मैम ने आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ ब्रीफ कर दिया है कि हमें CPR कब करना है और कैसे करना है. Now we will demonstrate that. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. Actually this is an interactive session and you and we both can interact with each other. So I want actually demonstration from your side and from our side also. So I want 6 volunteers. Anyone? 2 is must from the girl side and 4 is from the boys side. Yes ma'am, very good, very good. If you are coming, this is really appreciated. Very nice ma'am. में कोई बच्चा खेल रहा था और अचानक से वो ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है? फिर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ओके, नंबर 1 व्हाट वी विल सी. सबसे पहले हमें क्या देखना है? पल्स एंड ब्रीदिंग से पहले भी हमें क्या देखना है? सीन सेफ्टी. वेरी नाइस. सबसे पहले हमें क्या देखना है? सीन सेफ्टी. सीन सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे मैम ने बताया, मान लो कोई बिजी रोड है, उस पर अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो क्या हो सकता है? कोई भी व्हीकल आके हमें ही मार सकता है, तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है. या फिर मान लीजिए किसी फैक्ट्री वगैरह में या घर में आग लग गई है, देयर इज अ फायर, तो हम फायर में तो नहीं चले जाएंगे ना. विल वी गो देयर एंड डू द CPR? वी विल नहीं ना. तो व्हाट वी विल डू इन दैट सिचुएशन? वी विल कॉल फॉर हेल्प. कॉल फॉर हेल्प फॉर हूम? एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, है ना, वो लोग हमारी हेल्प करेंगे. मान लीजिए हम किसी स्विमिंग पूल पे गए और वहाँ पे हमने देखा कि कोई स्विमिंग करते टाइम पे एकदम से अनकॉन्शियस हो गया अंदर और हमें तैरना नहीं आता है, वी डोंट नो द स्विमिंग. तो व्हाट वी विल डू? विल वी गो इनसाइड द पूल? नहीं. देन व्हाट वी विल डू इन दैट सिचुएशन? Call for help. Definitely the someone who knows how to do the swimming, that person can help us. Okay. So this is the first is scene safety. और हमारा सिनेरियो क्या था कि we are in a school और कोई बच्चा वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे गिर गया है. तो सबसे पहले आपने देख लिया scene is safe because school is your safe. So that is a safe place. Okay. Now the second step is we will start the CPR or what we will do the next step? Very good. सबसे पहले हमें चेक करना है रिस्पॉन्स. हाउ विल वी
check the response. पल्स से भी चेक करने से पहले आपको क्या चेक करना है? Response. Why the response is important to check? मान लीजिए जैसे मैं हूँ अभी 24 आवर की ड्यूटी करके आई हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं अपने घर में गई और बहुत गहरी नींद में सो गई, ठीक है। आप आए, आपने बेल रिंग की, मैंने दरवाजा नहीं खोला, आपने दरवाजा खोला और आए, अरे सुलेखा मैम तो मर गई। नहीं, कैसे पता चलेगा कि मर गई है? नहीं मर गई मैडम। यू विल चेक द रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं आप बताओ? कोई सोता होता है तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? सबसे पहले वो जो उठाते हैं ना उसे, वी विल टैप। What we will do? Please demonstrate, Kapil ji and Rakesh ji. They will demonstrate you कि first what we are supposed to do after checking the scene safety. You have to check the response, and how we will check the response? You will tap on the shoulder and you will ask, are you okay? सबसे पहले यही करते हैं ना, अगर कोई सो रहा है या नहीं भी सो रहा है तो are you okay? अगर इतनी जोर से थप्पड़ मारा और कोई उठ गया, इसका मतलब उसका CPR करना है या नहीं करना है? वेरी गुड। और अगर इतनी जोर से थप्पड़ मारा और उसके बाद में वो नहीं उठता है तो CPR करना है नहीं करना है? सोचना है कि इसका CPR हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पल्स तो चेक ही नहीं किया है। CPR किसका करना है? CPR उसका करना है जिसका हार्ट रुक गया है और जिसका लंग रुक गया है ना। हमें रीस्टार्ट करना है हार्ट को और लंग को। तो उसके लिए हमें पहले पता करना है कि पल्स है या नहीं है और पेशेंट मतलब पर्सन ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो कैसे करेंगे? अब आपने चेक कर लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। आपने थप्पड़ मारा जोर से उसके शोल्डर पे, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपको लगा वो कहीं ऐसा तो नहीं इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। आपने सबसे पहले कॉल कर दिया 112 पे। क्या बोलेंगे 112 पे कॉल करके हम लोग? कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम MPS स्कूल और यहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें लग रहा है कि कार्डियक अरेस्ट है। आप लोग अपना AED और इमरजेंसी का सामान लेके आ जाइए। और मीनवाइल आप क्या करेंगे? आपके इतने सारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उनको बोलेंगे कि भाई सीनियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दो, ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। अब हम कैसे पल्स चेक करेंगे वो बताएंगे। तो पल्स कहाँ पे चेक की जाती है? यहाँ कहाँ? वेयर? मुझे MPS स्कूल आना था तो आप मुझे लोकेशन सेंड करेंगे या नहीं करेंगे? तो आपको पल्स चेक करनी है या नहीं करनी है? आपको पल्स की लोकेशन पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, गर्दन तो बहुत बड़ी है, यहाँ से यहाँ, है ना। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए आप सब लोग अपने बीच में देखिए, गर्दन के बीच में एक सांस की नली है, ठीक है। इसको हम ट्रेकिया या फिर विंड पाइप बोलते हैं। इसको फील कीजिए और 2-3 फिंगर से, उसके बाद में थोड़ा सा लेटरली मतलब बीच से इधर की तरफ को आइए। आपको एक इस तरीके से मसल मिलेगी। देखिए एक इस तरीके से फील कीजिए, मसल सी होगी। इस विंड पाइप और इस मसल के बीच में एक गड्ढा होगा। उस गड्ढे में आप अपनी चारों फिंगर को डालिए और सब लोग अपनी अपनी पल्स फील करिए और देखिए किसकी पल्स नहीं आ रही है। प्लीज बताइए किस किसकी आ रही है और किस किसकी नहीं आ रही है। Who can feel it? All? ओके, सब लोग जिंदा हैं, ठीक है, ओके फाइन। सबको फील हो गई है ना? पक्का? ये वाली नहीं फील करती है। आप लोग यूजली मूवीज में क्या देखते हैं? डॉक्टर आके रेडियल पल्स फील करता है, ऐसे करता है ना, वो मूवी वाली बात है। रियल लाइफ में हम ये नहीं करते, ठीक है। रियल लाइफ में हमें कौन सी फील करनी है? कैरोटिड पल्स, ठीक है। इसे क्यों करना है? क्योंकि ये बहुत मोटी
होती है और अगर अरेस्ट हो रहा है और अगर इसमें भी पल्स फील नहीं हो रही है, इसका मतलब कि पर्सन को अरेस्ट हो गया, यू आर श्योर। ये पतली पतली जो होती है यहाँ पे रेडियल आर्टरी वगैरह, तो ये तो आपके बीपी कम भी होगा ना, तब भी आपको फील नहीं हो सकती, तो उस सिचुएशन में आपको नहीं सीपीआर करना है, ठीक है। ये कैसे देखेंगे कि पेशेंट को सांस आ रही है या नहीं आ रही है, कैसे पता लगाएंगे? जब आप सोते हैं, आपके घर में छोटा बच्चा है या आपके घर में बड़े लोग हैं, कभी आपने देखा है जब कोई सोता है तो उसकी चेस्ट राइज और डाउन होती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर दूर से हम देखें तो बता सकते हैं कि कोई सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, ठीक है। तो सीपीआर किसका करना है? जिसकी पल्स नहीं आ रही है और जिसकी छाती ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही। वेरी गुड, ठीक है। मान लो आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आंख खोल दी उसने, सीपीआर करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। मान लो कोई पर्सन है, सड़क पे है, उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल ले ली है, ठीक है, एक पूरी बोतल उसने पी ली नशे में धुत, उसके बाद में आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो आपके लिए रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बोल नहीं रहा है, लेकिन आपने जब उसको टैप किया, उसने हाथ अपना, इसका सीपीआर करना है नहीं करना है? नहीं करना। वेरी गुड, आप लोग समझ गए अब कि हमें सीपीआर करना किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी में रिस्पॉन्स है, उसका सीपीआर नहीं करना है, किसी को पल्स आ रही है, उसका सीपीआर नहीं करना है, और अगर किसी की छाती अप और डाउन हो रही है तो उसका सीपीआर नहीं करना है, ठीक है। करना कैसे है? अब एक बार प्लीज पल्स और ये चेक करके बता दीजिए कि कैसे पल्स चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा एडम सर्कल है, इसके जस्ट 3 फिंगर से आप यहाँ पे एक ग्रूव होता है, यहाँ पे कैरोटिड पल्स आपको मिलेगा, ठीक है, राइट। अब आपने कॉल भी कर दी, आपने ये भी कंफर्म कर लिया कि पेशेंट है और वो सांस भी नहीं ले रहा है, इस पेशेंट का तो मुझे सीपीआर, ओके, वी विल चेक ऑन हिम। सो एक बार इनको बोलेंगे कि बलगम निकले, आप बलगम निकलिए, इस तरीके से करिए, स्वॉलो मूवमेंट करिए। ये चीज हिल रही है ना, तो जो हिल रही है वो क्या होता है? एडम्स एप्पल। वेरी नाइस, वेरी गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, ठीक है। तो इस एडम्स एप्पल से हमें 3 फिंगर से नीचे आना है, ओके, लाइक दिस, एंड थोड़ा सा लेटरली जाना है, और वहां पे एक मसल और एक गड्ढा है, उसके बीच में पल्स फील करनी है, ठीक है, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जब आपको पल्स नहीं मिलेगी तभी उसके बाद में आपको सीपीआर स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में हमें कंप्रेशन देना है और 2 ब्रेथ देनी है। तो कंप्रेशन किस जगह पे देना है? एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कंप्रेशन कभी ऊपर देते हैं, कभी इधर नीचे देते हैं, लेकिन अगर हम एग्जैक्टली वहां नहीं देंगे कंप्रेशन जहां हमें देना है, तो हमारा सीपीआर इतना इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं कि यूजली क्या होता है, निपल्स जो होते हैं यूजली फिक्स्ड प्लेस होता है, इन दोनों निपल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं, और एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल, एक लाइन वर्टिकल, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन मीट करते हैं इन बिटवीन, वहां पे हमें क्या करना है? सीपीआर। या फिर मोटा मोटा आप ऐसे जान लीजिए कि जहाँ पे छाती की बीच है पार्ट, बीच वाले हिस्से में करना है, ठीक है, ना तो नीचे हिस्से में करना है ना ऊपर हिस्से में करना है। ऊपर हिस्से में अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जिसके पेट में बच्चा है, तो उस केस में हमें ऊपर करना होता है, क्योंकि उसके केस में क्या होता है, नीचे की तरफ प्रेशर होता है, तो आप वहाँ पे करेंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो थोड़ा सा मिड लाइन आप कर सकते हैं केस में।
तो उसके बाद में आपको प्लेस पता चल गया कहाँ पे करना है। हैंड्स कैसे रखने हैं हमें CPR करते टाइम? हाँ आपको हमें फिंगर्स लॉक करनी है, मतलब एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखना है और फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, ठीक है, जैसे कपिल जी ने किया हुआ है, राइट। उसके बाद में रिस्ट हमारे स्ट्रेट होने हैं, रिस्ट पे ये मूवमेंट नहीं होना है, एल्बो शुड बी स्ट्रेट, ठीक है, एल्बो ऐसे नहीं होना है कंप्रेशन करते यूं या ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए जैसे राकेश जी और कपिल जी ने रखा है। नी क्या होनी चाहिए आपको? नील करनी है, मतलब आपको नी को बेंड करना है ऑन द सरफेस। पेशेंट कहाँ होना है आपका? हार्ड सरफेस पे, ओके। मान लीजिए पर चांस कभी ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो जाती है कि घर में कोई आपको लगता है कि किसी की पल्स या ये रुक गई है और वो बहुत ही 6 इंच मोटे हुए स्पॉन्ज के गद्दे पे सो रहा है मैट्रेस पे, तो विल वी स्टार्ट द CPR देयर? देन वेयर वी विल स्टार्ट? वी विल टेक ऑन द ग्राउंड, ठीक है, या फिर नीचे कुछ उसके मैट्रेस बिठा के पतला, तब हम कर सकते हैं, बट नॉट ऑन अ स्पॉन्जी थिंग, स्प्रिंग मैट्रेस, कोई भी चीज जो कंप्रेस हो उस पे नहीं करना है। वी हैव टू यूज अ हार्ड सरफेस, ओके। देन आपको जो भार देना है अपनी कंप्रेशन करते टाइम, हमें वेट कहाँ का देना है? शोल्डर और अपने हाफ ऑफ द बॉडी, पीछे जो बैक है हमें इसका वेट देना है। क्यों देना है बैक का वेट? वाई? आप खड़े किस पे होते हो? आई एम स्टैंडिंग ऑन व्हाट? ऑन माय स्पाइनल कॉर्ड, है ना, यू नो स्पाइनल कॉर्ड ना, ओके। बोलते हैं ना यार वो तो कोई स्टैंड ही नहीं ले सकता, ही इज हैविंग नो स्पाइन एंड शी इज हैविंग नो स्पाइन, मतलब अगर जिसके पास में स्पाइनल कॉर्ड नहीं है वो अपने स्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी बैक मसल्स हैं वो पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, ठीक है, जो हमें खड़ा तक कर सकती है। तो जब हम इससे प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर क्या होगा? डायरेक्ट ट्रांसमिट होगा कहाँ पर? हार्ट पर, ओके। सो वी विल कंप्रेस द हार्ट मोर, ठीक है, और चांसेस ऑफ रिवाइवल क्या होंगे? मोर, वेरी गुड। So how we will do the compression? Our heads will be like this and the weight of our upper half of the body will go straight directly on the heart. Okay. How many compression we will give? 30. Very good. कहाँ से देना है? यहाँ उंगलियों से देना है या कहाँ से देना है? Very good. क्यों देना है यहाँ से? Very good. क्योंकि heel के अंदर ज़्यादा पावर होती है in comparison to the finger. तो हम यहाँ से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं. Right. Okay. उसके बाद में 30 to 1. स्टार्ट करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. आप अकेले हैं तो क्या करेंगे? ब्रेथ आपको ही देनी पड़ेगी डेफिनेटली. अगर 2 लोग हैं तो आप उसको बोल दो भाई मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ, आप ब्रेथ दे दो, है ना भाई. आप वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना आप उस केस में. अकेले हैं तो ब्रेथ आपको देनी है, 2 लोग हैं तो एक कंप्रेशन दे देगा, एक ब्रेथ दे देगा. तो ब्रेथ कैसे देनी है? देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं कि पॉकेट माउथ से देनी है. बट एक बात बताइए, आप मार्केट जा रहे हैं तो पॉकेट माउथ से अपनी पॉकेट में लेके जा रहे हैं? आर यू हैविंग? मेरे पास भी नहीं है. आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 13 ईयर, लेकिन मेरे पास आज भी नहीं है. तो हमें प्रैक्टिकली क्या, बेसिकली वी शुड नो हाउ टू डू द माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ठीक है, और माउथ टू नोज.
Okay, so how do we do the mouth to mouth respiration? एक बार राकेश जी और कपिल जी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे. We have to give our exhalation air. जैसे मैम ने बताया था, हमें जो एक्सपिरेशन के टाइम पे जो हम एक्सपायर कर रहे हैं ब्रेथ को, वो हमें देनी है. उसमें क्या करना है आपको? माउथ टू माउथ इंटरलॉक करना है. ठीक है. उसके बाद आप अपनी ब्रेथ जो होगी एक्सपिरेशन के टाइम में वो पेशेंट को देंगे. ठीक है. कैसे देंगे ये लोग आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, एक हैंकी या फिर कोई कपड़ा उसके मुंह पे लगा सकते हैं. देन यू कैन गिव. ठीक है. राइट. अंडरस्टूड. गॉट इट. ठीक है. तो जैसे इन्होंने गॉश पीस यूज किया है एज ए हैंकी, आप उसको यूज कर सकते हैं. और उसके बाद में हाँ, तो अपन को सबसे पहले जो माउथ टू माउथ ब्रीथ करनी पड़ेगी, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, खुद से पहले एक सांस लेनी पड़ेगी, लंबी ब्रीथ, ताकि आप पेशेंट को डिलीवर कर सकें. और सब लंबी सांस लेने के बाद में क्या करना पड़ेगा, आपके लिप्स को पेशेंट के लिप्स पे लॉक करना होगा. देन उसके बाद में जो नोज है, राइट हैंड है, उससे नोज को पिंच करना पड़ेगा. और जो लंबी ब्रीथ आपने ली है वो पेशेंट को डिलीवर करना है. मैं बता रहा हूँ आपको. देखिए प्लीज. हेड फील किया, लिप की, नोज को पिंच किया, जो ब्रीथ मैंने ली थी मैं पेशेंट के लिप्स पे करता हूँ. आप देखिए ये जो मैनिक्यूर है, अगर आप देख सकते हैं तो इसकी जो चेस्ट है, जब ये ब्रेथ दे रहे हैं तो अप जाएगी. कैन यू सी? ओके. इट मीन्स योर ब्रेथ इज डिलीवर्ड टू द पेशेंट. ठीक है. उसके बाद में क्या करेंगे, 2 ब्रेथ दे दी. अगेन फिर क्या करेंगे? वेरी गुड. यू आर वेल रेड. ठीक है. तो we will again start with the 30s to 2 के compression. That we will give how many cycles? 5 cycles. उसके बाद में क्या करना है, पल्स चेक करनी है. अगर बीच में ही कोई मेडिकल प्रोफेशनल आ गया आपकी हेल्प करने के लिए, तो he will use the AED. ठीक है. तो what is AED? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. वेरी गुड. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. चॉकलेट नहीं है वरना देती मैं आपके लिए. ठीक है. तो दिस इज AED. ठीक है. ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. ऑटोमेटेड बिकॉज खुद से ही प्रॉम्प्ट करता है, खुद से ही देख लेता है शॉक देना है नहीं देना है. हम लोग तो वहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा वाला यूज करते, देखते हैं कि शॉक देना है नहीं देना है, कैसा रिदम आ रहा है, कितना शॉक देना है. इसमें कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना है. ठीक है. इसमें दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि दिस इज मेड फॉर द नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स. ठीक है. इसलिए बिकॉज आप यूके जाएंगे, यूएस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इवन आई थिंक इन इंडिया मेट्रो सिटीज बॉम्बे एंड ऑल, आपको हर जगह किसी अच्छे मॉल में, पीवीआर में AED मिल जाएगा. ठीक है. तो वी शुड नो हाउ टू यूज दिस. ओके. राइट. तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है ऑन ऑफ. जैसे किसी भी मशीनरी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ऑन ऑफ का बटन होता है. तो दिस मशीन इज ऑल्सो हैविंग अ 1 ऑन एंड ऑफ बटन. तो दिस ग्रीन कलर बटन इज, आप डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए. दिस ग्रीन कलर बटन इज ऑन एंड ऑफ. एंड फर्स्ट स्टेप इज टू ऑन द मशीन. सबसे पहले अपन को पावर ऑन करना पड़ेगा. सेकेंड स्टेप इज, चलो मैं बता देती हूँ. सेकेंड स्टेप इज टू अटैच द पैड्स. ठीक है. इसमें 2 पैड्स होते हैं. ठीक है. तो ये पैड कहाँ पे आपको अटैच करने हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. राइट में कहाँ पर, शोल्डर के नीचे. इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं ना, क्लैविकल ये वाली होती है, इसके नीचे. और लेफ्ट में कहाँ करना है, लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट के नीचे. आप लोग मोटा मोटा ऐसे याद कर लीजिए, लेफ्ट ब्रेस्ट के नीचे और राइट ब्रेस्ट के ऊपर, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं उसको. ठीक है. थर्ड स्टेप इज, ये बोलेगा एनालाइजिंग द रिदम. जब एनालाइजिंग द रिदम बोलेगा तब हमें क्या करना है, अगर हम कंप्रेशन दे रहे हैं तो हमें हट जाना है.
क्यों हट जाना है? क्योंकि अगर हम ऐसे से करते रहेंगे तो ये अपना रिदम एनालाइज ही नहीं कर पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने अपना रिदम को एनालाइज किया। फिर से हम दोबारा से आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Deliver shock now. Press the orange button now. अपने आप से एनालाइज किया रिदम। उसने कहा डू नॉट टच द पेशेंट, वी हैव टू जस्ट फॉलो द प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। वो जो बोल रहे हैं हमें करना है। Shock delivered. ठीक है, उसने कहा डू नॉट टच द पेशेंट, वी विल स्टे अवे फ्रॉम द पेशेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप ही इज सेइंग shock advised. Shock advised means now we have to give the shock. Okay, so the red button is to deliver the shock. You have to just push that button. Okay, red button. So what we have to do? Only we have to attach the pad. First on out, attach the pad. Then third is if this machine will prompt shock advice, then we have to just push that red color button. ओके, देन एडी यूज करने के बाद सीपीआर बंद कर देना है या चालू रखना है? वेरी गुड, वेरी गुड, आप पढ़ के आए हैं पूरा। ठीक है, क्यों चालू करना है? हाँ, एक्चुअली एडी हम देते कहाँ पे है? शॉक कहाँ पे देते हैं हम? जब हमारा हार्ट क्या करता होता है, ऐसे ऐसे काम करता है। नॉर्मली कैसे काम करता है? लव टप लव टप लव टप। और जब अरेस्ट है तब कैसा कर रहा होगा? तो ये एबनॉर्मल हो जाता है। एक्चुअली नॉर्मल की जगह क्या हो जाता है? एबनॉर्मल। जब बच्चा घर में बहुत शैतानी करता है तो मम्मी क्या करती है? थप्पड़ मारती है ना। तो ये भी क्या करता है? शॉक थप्पड़ मारने का काम करता है। थप्पड़ मार के शांत हो जाता है बच्चा। ठीक है, फिर उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है, पैम्परिंग करनी पड़ती है उसकी। तो ऐसे ही अपना हार्ट है, शैतानी कर रहा था, शॉक दे दिया हमने, अब रुक गया बेचारा। शॉक देने के बाद में क्या करना है? दोबारा से स्टार्ट करने के लिए चालू तो हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से दोबारा से 30:2 के 5 कंप्रेशन देने हैं। ठीक है, प्लीज नाउ वी विल डेमोन्स्ट्रेट अलॉन्ग विद योर टीम। ठीक है, all the 6 members will come along with us. We will demonstrate. फॉलो करेंगे, तीनों मैनेक्विन पे सेम सिनेरियो फॉलो होगा। ठीक है, पिक्चर देखने गए थे हम लोग पीवीआर में। कौन सी मूवी देखने गए थे? कौन सी आई है अभी? कोई आई है अभी? नहीं, मेरे को तो आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो कोई अच्छी सी याद कर लेते हैं। डीडीएल आई हुई थी। ठीक है, पुराने वाले हम लोग ये सब देखने के लिए गए हुए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? आप स्टेयर्स पे थे। प्लीज प्लीज लिसन द सिनेरियो ऑल ऑफ यू। हम स्टेयर्स पे थे और कोई कोलैप्स कर गया स्टेयर्स पे। तो अब हम क्या करेंगे और कैसे प्रोसीड करेंगे? नंबर 1, पेशेंट स्टेयर पे है, क्या करना है हमारे लिए? सीन सेफ्टी। तो उसको स्टेयर से किसी हम हार्ड एंड स्मूथ सरफेस पे लेके आ गए। नाउ द सीन इज सेफ एंड वी विल सेकेंड स्टेप इज चेक द रिस्पॉन्स। ये लोग क्या कर रहे हैं? शोल्डर पे टैप करके रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत जोर से मारा लेकिन आपके पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपके दिमाग में क्या बात आई? कहीं यार ये अरेस्ट तो नहीं है? ठीक है, आप मॉल में थे, आपने 112 को कॉल लगा दिया कि मैं ये मॉल से बोल रहा हूँ, है ना, कोई भी मॉल से बोल रहा हूँ, और यहाँ पे एक पर्सन है लगभग 40 साल का है और कोलैप्स कर गया है। ठीक है, प्लीज़ आप अपनी एडी और इसके साथ में आ जाइए, इमरजेंसी एम्बुलेंस के साथ में। ठीक है, वो आ रहे हैं। मीनवाइल हमें क्या करना है अब? चेक द पल्स। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू चेक द पल्स। ऑल ऑफ यू प्लीज चेक द पल्स।
ठीक है, ठीक है। आपके पेशेंट को यस I think we will go for the conclusion of today's session.
and thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा आज. I'm so overwhelmed, so overjoyed कि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया और सामने कोई कोलैप्स होगा तो आई एम श्योर वो घर वापस जाएगा, आप लोग उसको बचा लोगे. So thank you so much guys. We'll conclude this program. It won't be possible for everyone to practice unfortunately. So yeah, thank you so much. I'll hand over the mic to our principal ma'am to conclude or our students to conclude. To invite respected principal ma'am, Mrs. Manju Sharma, and the honorable secretary sir of our school, Mr. Deepak Sharda, on the stage for presenting mementos to all the doctors and the nursing staff who conducted this session beautifully.